We were discussing 2017 RTU paper, and we were doing questions from Unit 2. This is not the actual pattern of paper that you will be getting. This is an older pattern, but questions can come from previous papers also. And especially in engineering mechanics, you will see in this paper itself that there are a lot of repeated questions. So it's a very, very good exercise that we are solving the university papers. यूनिवर्सिटी पेपर्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में 4-5 साल की सॉल्व करके प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो there are very good chances that you will get same repeated questions even without a single change of parameters also. मतलब न्यूमेरिकल डेटा भी वही का वही सेम मिल जाएगा, काफी चांसेस मिलते हैं. Anyway, from unit 2 in the previous class we had covered, or we had rather solved this problem of determining the centroid of the composite figure, and the other option for unit 2 is explain the reversibility and law of machines. So I leave this, since this is a theoretical question, you can go and study it from the notes. B part, please read the question. This is from lifting machines. The number of teeth on the worm wheel of a single worm and worm wheel is 60. Calculate the velocity ratio if the diameter of effort wheel is 25 centimeter and that of the load drum is 12.5 centimeter. Effort required to lift a load of 600 Newton by this machine is 20 Newton. Find the efficiency of the machine. Question worth 8 marks. Now see, there are a lot of lifting machines that we have studied, and many of the lifting machines, if a question comes from that particular part of your syllabus, you should not expect a diagram also, just as in this case. So how do you prepare, make preparation for questions from lifting machines? First of all, let me tell you that lifting machines is a part of your syllabus which is very, very simple. You simply have to learn the formula and a very simple figure associated with it, and you can easily solve questions from lifting machines. So this is one topic that you should definitely prepare well. इसके सारे फॉर्मूले रट लेने हैं इस टॉपिक में से, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं 99% टाइम्स. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड डायरेक्ट क्वेश्चन एज सच. तो अब मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि लिफ्टिंग मशीन्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है. पहले एक बार देखें कि कहाँ पर है अपना लिफ्टिंग मशीन. Let us go to the notes. I have already sent you an index which tells you which topic is from which notes. So if we look at this, Weston's different worm and worm wheel. Worm and worm wheel का क्वेश्चन कर रहे हैं. This is lecture notes number 15. Lecture notes number 15 पे जाएंगे आप. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये सेम इंडेक्स और ये सेम लिस्ट ऑफ लेक्चर नोट्स एंड लेक्चर वीडियोस हैज बीन गिवन टू यू ऑन योर क्लासरूम ऐप. तो आप अगर अपने आप से बैठ करके पढ़ाई करते हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर वीडियो या नोट्स आपको रेफर करना है तो आप इस इंडेक्स के जरिए इजीली रेफर कर सकते हैं. नाउ यू सी, लिफ्टिंग मशीन्स में अपन ने लीवर पढ़ा, सिंपल पुली पढ़ा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज. नाउ सी हाउ, यहाँ से आपका मेन लिफ्टिंग मशीन्स का पार्ट चालू होता है. लीवर इज वेरी सिंपल, सिंपल पुली एवरीबॉडी नोज व्हाट इट इज. फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, इसको कैसे याद रखने का है, ये जो फिगर बना रखा है इसको रटना है. इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फिगर
there is a very good chance that you won't be able to solve this problem easily. तो आपको ये फिगर मैं इसीलिए याद रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं अगर अपने को टाइम मिलता है और तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट लिफ्टिंग मशीन्स भी पढ़ाऊंगा। यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज हमेशा ऐसा नहीं। It is not necessary that the first system of police will always look like this. There is an alternative arrangement which is also called as first system of police. तो अगर आपके एग्जाम में वैसा फिगर आ जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है? So that type of question would be considered as a problem having a little bit higher level of difficulty. लेकिन वो भी मैं आपको समझा दूंगा when we come to that. But the basic requirement is कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस के नाम से टेक्स्ट बुक्स और इन जनरल जो कम्युनिटी है, साइंस कम्युनिटी है, वो कौन सा फिगर याद रखती है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। तो इसको ये इतना इंट्रिकेटली इन्होंने जो ऐसे बना रखा है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, आई विल शो यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल डायग्राम ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस एंड रिमेम्बर इट एज सच। सबसे पहले इसको देखो कैसे याद रखना है। इसमें एक फिक्स्ड पुली होती है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस और बाकी सारी मूवेबल पुलीज, यानी कि दीज पुलीज देमसेल्व्स कैन मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन कंपल्सरी पुली दैट हैज टू बी फिक्स्ड एंड ऑल द अदर पुलीज हैव टू बी मूवेबल। ये है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस का मेन कैरेक्टरिस्टिक, जिसको याद रखना है। तो अब इसको देख करके अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो फिक्स्ड सरफेस बनाओ, उस पे फिक्स्ड पुली बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो, दिस इज वेर यू अप्लाई द एफर्ट। ये देखो, ठीक है, और यहाँ से धागा खींचोगे तो उसके बाद सारी पुलीज आपकी मोशन में आ जाएगी। नाउ यू ड्रॉ एज मेनी पुलीज एज यू वांट। ये फर्स्ट मूवेबल पुली हो गई, इसको ऊपर चिपका दो। फिर उसके नीचे सेकेंड मूवेबल पुली हो गई, इसका धागा ऊपर चिपका दो। इसके नीचे थर्ड मूवेबल पुली हो गई, इसका धागा ऊपर चिपका दो, एंड सो ऑन। So the number of movable pulleys can be as many as possible. आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज लगाते जाओगे, आपका मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी रेशियो उतना ही बढ़ता चला जाएगा साथ साथ में। यानी कि खूब धागा खींचने पे थोड़ा सा एफर्ट, सॉरी थोड़ा सा लोड उठ पाएगा। दिस इज वेर यू अप्लाई द लोड। बस इतना सा फिगर बनाना है। देखिए, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको आपने देखा कि मैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल करने के लिए अपने रफ स्पेस में जाकर के जल्दी से ये फिगर बना लूंगा ताकि मैं इसकी कैलकुलेशंस और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स को याद रख सकूं। अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस की पढ़ाई कर रहे हो आप, सो व्हाट एल्स डू यू नीड टू रिमेंबर? मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लिफ्टिंग मशीन्स इज ऑलवेज गिवन बाय लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। ये फॉर्मूला तो सारे लिफ्टिंग मशीन्स के लिए फिक्स्ड है। जो फॉर्मूला मशीन टू मशीन चेंज होता है वो वेलोसिटी रेशियो का है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर सेपरेटली फॉर ईच इंडिविजुअल लिफ्टिंग मशीन। तो अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस का आपका वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 raised to power n। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस इतना सा आपने बना दिया और इसको रट लो। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस पे जाएंगे। सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस में कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी कि इसमें n नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलिस होती है और उतनी ही नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होती है। ये देखो, इस फिगर में मैंने जो आपको दिया है, इस फिगर में 3 पुलिस फिक्स्ड है। ये देख रहे हो, ये कॉमन स्टेम आ रहा है एंड दिस कॉमन स्टेम इज फिक्स्ड टू द फिक्स सपोर्ट एट द सीलिंग। और इस कॉमन स्टेम से लगी हुई जो पुलीज है, ये ना तो ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, क्योंकि ये स्टेम खुद ही ऊपर फिक्स किया हुआ है। नीचे वाला जो सेट ऑफ पुलीज है वो भी एक कॉमन स्टेम से कनेक्टेड तो है, लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी बॉटम स्टेम ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो अपन ये बोलेंगे कि इस स्टेम से कनेक्टेड सारी पुलीज मूवेबल है। So what is the characteristic of second system of police? There are more than one
फिक्स्ड पुलीज, इस तरीके से पहचाना जाता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज में एक फिक्स्ड पुली है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलीज में एक से ज्यादा फिक्स्ड पुलीज मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब मैं आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, वी विल रिविजिट एंड हैव दिस डिस्कशन वंस अगेन। तो इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा इलेबोरेशन नहीं कर रहा हूँ इसका। इसमें भी आप एक सिंपल सा फिगर इसका बनाएंगे। ये जो फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी सिंपल फिगर, यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, और इसके वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला याद रखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज तो इसमें भी वही है, W अपॉन P, और वेलोसिटी रेशियो का इसका फॉर्मूला क्या है, 2n। ठीक है, वेयर n यू हैव टू रिमेंबर इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो इसमें टोटल पुली तो आपको 6 दिख रहे हैं, लेकिन मूवेबल पुली कितने हैं, 3 ही। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल n विल बी 3। तो इस तरीके से अपना एक छोटा सा सेपरेट नोट शीट स्टार्ट करें व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर, जिसमें कि जो फिगर याद रखने हैं, जो फॉर्मूले याद रखने हैं, इन सब का एक छोटा सा अपना पर्सनल सेट आप लोग प्रिपेयर करके रखें और उसको बाय हार्ट करें। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस के अंदर भी आप ये देखेंगे कि ये एक फिक्स्ड पुली है, बाकी सारे मूवेबल पुली। अब आप ये बताइए इसमें देख करके, आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्लाई योर लॉजिक, apply your intelligence and tell me how the first system of pulleys and the third system of pulleys are different from one another. इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज में एक फिक्स पुली, बाकी सारे मूवेबल पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज में भी एक फिक्स पुली, बाकी सारे मूवेबल पुली। सो कैन यू गाइज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, क्या बेसिक फर्क है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज द थर्ड सिस्टम ऑफ। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो मैं इसको एक ही साथ बता देता हूँ। लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज है, राइट साइड वाला फिगर थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन ये इतना कौन सा बहुत इसमें बवाल है, व्हाट इज द बिग डील अबाउट दिस। दोनों में कॉन्सेप्ट तो वही है, लोड उठ रहा है। एक तरह से शायद आपको देख करके ऐसा लगेगा कि ये फिगर उल्टा हो गया है। ये खूब सारे जो धागे हैं ये फिक्स्ड एंड पे लग रहे थे, ये खूब सारे धागे अभी बॉटम एंड पे लग रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा मेन डिफरेंस और आपको नजर आ रहा है। बताइए। कुछ तो दिख ही रहा होगा, जो दिख रहा है वो बताओ आपको। व्हाट इज हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस एंड द थर्ड सिस्टम। सर यहाँ पे सर ये जो लोड है सर, ये जो एफर्ट है सर यहाँ पे सर ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है सर, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीस है सर, उसके अंदर सर जो एफर्ट है सर वो ऊपर से लग रहा है, तो सर यहाँ पे लोड और एफर्ट सर वो दोनों ही डाउनवर्ड्स है। नहीं, एफर्ट देखो दोनों में नीचे की तरफ को लग रहा है। आप थोड़ा तो आइडेंटिफाई कर पाए, बट यू वर नॉट एबल टू पिन पॉइंट द एक्चुअल डिफरेंस। The actual difference between these two systems is that the effort is applied on the fixed pulley in the case of यस first सर, system, and यस the सर। effort is applied on the movable pulley in the case of third system of pulley। ये है इसका सबसे क्रूशियल डिस्टेंस। अदरवाइज बाकी सारी चीजें सुपरफिशियल है। धागा आपने कहाँ पे चिपका रखा है, ये सब चीजें बहुत उतनी ज्यादा मैंडेटरी डिफरेंसेस में नहीं आ रही है। और अगर आप ऐसे नंबर ऑफ फिक्स्ड और मूवेबल पुलीज को देखें तो फर्स्ट और थर्ड में ये कॉमन है कि एक तो फिक्स्ड पुली है और बाकी जितनी मूवेबल पुलीज आपको लगानी है आप अपनी इच्छा से लगाओ। और जितनी ज्यादा मूवेबल पुलीज लगाओगे उतना ही आसानी से लोड लिफ्ट होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा धागा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी बच्चे से भी 100 किलो उठवाना चाहते हैं तो आप 5-6 मूवेबल पुलीज और लगा दो इसमें, तो एक छोटा बच्चा भी 100 किलो आराम से लिफ्ट कर सकता है। उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर आप नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज को कम कर देते हैं तो आपके लोड और एफर्ट के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। यानी कि 100 किलो उठाने के लिए हो सकता है आपको 50 किलो का एफर्ट लगाना पड़े, 80 किलो का एफर्ट लगाना पड़े, कम तो होगा बट द डिफरेंस विल बी लेसर। तो डिफरेंस कहां पर इसका मेन आया? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज में एफर्ट फिक्स्ड एंड पे लगता है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज में एफर्ट मूवेबल पुली पे लगता है। अब आगे मैं आपको इसके थोड़े से वेरिएंट्स दिखाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ इसको यूज करके आप पहचानेंगे कि यार ये टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पुलिस तो हमने देखी नहीं है, आप बोलोगे। तो अब उसमें से आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये फर्स्ट सिस्टम और थर्ड सिस्टम को मैं पुलिस के अरेंजमेंट को इधर उधर हेरा फेरी करके कंफ्यूज कर सकता हूँ। देयर इज अ वेरी गुड possibility that the examiner can confuse you by changing the arrangement of tools। तो आप उस confusion में से अपने आप को कैसे उभारेंगे, यही है इसको पहचानने का डिफरेंस। जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्राइटेरिया यही है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में एफर्ट कहाँ लग रहा है? हमेशा फिक्स्ड एंड पे लगता है, फिक्स पुली पे लगता है। और थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में एफर्ट कहाँ लगता है? हमेशा मूवेबल पुली। इसको अगर आप याद रख लोगे तो इस अरेंजमेंट को मैं कैसे भी बिगाड़ के दे दूं, आप फिर उसमें से पहचान सकते हो कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ पुलिस दे रखा है। ठीक है, एनीवे वी विल कम टू दैट लेटर। इसका क्या है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस को आपने देखा और उसके बाद यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज तो वापस से वही है, W अपॉन P बस। ठीक है, और n इज द नंबर ऑफ पुलीज। यहाँ पर फिक्स्ड मूवेबल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें आपको 4 पुलीज दिख रहे हैं टोटल, तो n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, आगे चले, सिंपल व्हील एंड एक्सल। इसमें आपको ये याद रखना है, ये देखो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है इसमें, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो इसमें कैपिटल D क्या है और स्मॉल d क्या है, ये याद रखना है। ठीक है, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखो, 2 टाइम्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d1 माइनस d2। तो ये रट तो लोगे, लेकिन अगर आपको ये फिगर ही याद नहीं है तो कैसे पता करोगे कि क्वेश्चन में दिए गए पैरामीटर्स, जैसे ये बोलता है फर्म व्हील के 60 दांत हैं और डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज 25, लोड ड्रम इज 12.5। ये सब क्या क्या चीजें हैं, ये पता भी तो होना चाहिए, वरना फॉर्मूले में क्या कुछ भी दे देगा वो आप उसको लगाओगे कैसे। सो रिमेंबर द फिगर विद अ सिंपल लाइन डायग्राम। अब ये देखो, ये जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है इसको कैसे आप सिंप्लीफाइड तरीके से बना करके याद रखोगे। आई विल वंस अगेन टेल यू हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल इमेज फ्रॉम दिस गिवन फिगर। इसको आप ऐसे बनाइए, फ्रेम व्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने तो पहला स्टेप बनाया, दूसरा स्टेप बनाया, डिफरेंशियल पुली अपन काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये बनाया आपका लोड, सॉरी एफर्ट भी, बस इतना सा बनाया। अब इसके ऊपर ऐसे धागे बना दो और उसके बाद यहाँ पर पी लगा दो, फिर उसके बाद इसका डायरेक्शन याद रखो, कैसे धागा आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से जा रहा है। ठीक है, ये देखो, बस काम खत्म। यहाँ पर एक छोटा सा मूवेबल पुले बनाया और इससे लोड लटका दिया। दिस इज द फिगर दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स ऑल। सारे पैरामीटर्स आपके इसी के अंदर आ जाएंगे। ये देखो, स्मॉल d2, स्मॉल d1, कैपिटल D, बस इसको इसी तरीके से याद रखो। ये d2 है, ये d1 है और ये कैपिटल D है। कैपिटल D आपके एफर्ट के व्हील का डायमीटर है और d1 d2 दोनों आपके लोड व्हील्स, डिफरेंशियल लोड व्हील्स के डायमीटर है। बड़ा वाला d1 है, छोटा वाला d2, बस खत्म बात। सिंपल फिगर, सिंपल फॉर्मूला। आगे चलें, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली, make a simple figure out of it, remember the value of or the formula for velocity ratio। ठीक है, and finally we come to the topic of our interest, worm
एंड वर्म व्हील। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील का फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बना के दिया हुआ है। इसमें आपको लगेगा देख करके कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वापस आपको बताता हूँ हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल फिगर। फ्रेम कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका वर्म हो गया। वर्म के ऊपर गांठ ऐसे बना दो बस। वर्म के साथ में कनेक्टेड होगा एफर्ट पुली या एफर्ट व्हील। और यहाँ पर गियर बना दो, दिस इज योर वर्म व्हील। और वर्म व्हील के अंदर एक होता है लोड ड्रम। ये है फिगर आपका वर्म एंड वर्म व्हील का। अब इसमें कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पैरामीटर अपने यूज हो रही है। स्मॉल आर लोड ड्रम का रेडियस है, स्मॉल आर। कैपिटल आर आपके एफर्ट व्हील का रेडियस है। अब इस फॉर्मूले में और इस फिगर में डायमीटर की बजाय रेडियस दे रखा है। ठीक है, अगर आप डायमीटर के तौर पे याद रखना चाहें तो भी फॉर्मूले में कोई खास फर्क नहीं आएगा। आपके वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आर टी अपॉन एन आर। ठीक है, आर इंटू टी अपॉन एन इंटू आर। अब ये क्या क्या चीजें हैं, स्मॉल आर आपको पता है क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द लोड ड्रम। यानी लोड ड्रम का मतलब वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिस पे की लोड को रखा है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द एफर्ट व्हील, जिस व्हील पे आप धागा बांध के एफर्ट को खींच रहे हैं। ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं। अब मेरे को ये बात बताओ, आप अपने से खुद से सोच के बताओ, अगर मैं रेडियस के टर्म्स में ये फॉर्मूला ना बना करके अगर स्मॉल डी और कैपिटल डी ले लूं तो कोई फर्क है क्या? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल डी इंटू डी अपॉन एन इंटू स्मॉल डी। कोई दिक्कत है क्या? सर ऐसे याद रख लो, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके प्रॉब्लम के अंदर डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील दे रखा है और लोड ड्रम का डायमीटर दे रखा है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं, कौन सा वाला, कैपिटल आर टी अपॉन स्मॉल एन आर, तब तो आपको दिए गए डेटा में डायमीटर को हाफ करने की बात याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने फटाक से बोला हाँ भाई एफर्ट व्हील का डायमेंशन बता 25, लोड ड्रम का डायमेंशन बता 12.5, सीधे उठा करके यहाँ रखा और इसमें सॉल्व कर दिया, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप ये जरूर याद रखें कि डायमीटर के फॉर्म में याद रख रहे हैं या रेडियस के फॉर्म में। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये सेम फॉर्मूला है। ये देखो, इट डजंट मैटर। तो कैसे भी याद रख सकते हैं, फिगर सिंपल बना करके उसके साथ में वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला लिखो और याद रखो। और जैसा मैंने बताया, यू मस्ट डू दिस। मैं आज इतना टाइम इस पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपका। लिफ्टिंग मशीन्स में से क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपकी क्लास में हर एक लड़के को 100% एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। क्योंकि बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 के 8 नंबर आपके पूरे मिलेंगे आपको। अब देखो क्या क्या चीजें हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस थिंग। कैपिटल डी आपके प्रॉब्लम में दे रखा है क्या, आप देख करके बताओ। अब आप रीड करो क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको फिलहाल इसका यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला जो है, जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यू डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट इट।
तो कैपिटल डी आपको दे रखा है 25। कैपिटल टी क्या है इसमें पढ़े। कैपिटल टी का मतलब है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। ये देखो लिखा नहीं है, बट टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर ऑन विच द लोड ड्रम इज अटैच्ड। ये आपका फिगर देखें वापस से आप, ये देखो ये जो गियर है, ये गियर आपके वर्म के साथ में मैच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस गियर में कितने दांत हैं, ये टी है, तो ये तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है। कितने दे रखे हैं? 60। 60 दे रखा है। तो टी इज गिवन एज 60। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी जो है वो उस सिलेंडर का डायमीटर है जो जिसपे की लोड लटका है, इसलिए इसको लोड ड्रम भी कहते हैं या लोड व्हील भी कह लो, आपकी इच्छा है। उसका डायमीटर दे रखा है 12.5, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 12.5। नाउ व्हाट इज दिस एन? इस एन को लेकर के मैंने आपको वीडियोस दिखाए थे, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था, पिच का कॉन्सेप्ट बताया था, ये सारी चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस की। बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दैट स्टफ, वो तो आपकी खुद की टेक्निकल एंथुजियाज्म को कर्व करने के लिए। बट यहाँ पर क्या, कैसे अपन पता करेंगे एन की वैल्यू क्या है? पहले एक बार देखें एन होता क्या है। इफ द वर्म इज एन थ्रेडेड, then for one revolution of the effort wheel, the worm will also complete one revolution, ठीक है। The worm will push the worm wheel through n number of teeth। तो अगर जैसा मैंने बताया वर्म और वर्म व्हील का जो सेट आता है उसमें एक पैरामीटर होता है कि कितने थ्रेडेड है आपका वर्म। अगर वो सिंगल थ्रेडेड है तो एन की वैल्यू हो गई 1, अगर वो डबल थ्रेडेड है तो एन की वैल्यू 2, अगर वो ट्रिपल थ्रेडेड है तो एन की वैल्यू 3। तो हाउ मेनी थ्रेडेड टाइप इज योर वर्म एंड वर्म, तो ये एक पैरामीटर आता है। और वर्म एंड वर्म बिल के क्वेश्चन में ये भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को ये बताओ एन की वैल्यू कितनी है। What is the value of small n as given in the problem? Sir, can you repeat your question, sir? क्वेश्चन ये है कि आपका फॉर्मूला ये है, देखो डी मिल गया, टी मिल गया, स्मॉल डी मिल गया। अब अपन इस पैरामीटर की तलाश में है स्मॉल एन कितना है। और स्मॉल एन क्या होता है? द थ्रेडेड पार्ट ऑफ वर्म, यानी कि ये जो चीज है इसको अपन वर्म कहते हैं। दिस इज द वर्म। तो वर्म का कितना थ्रेडेड है? आप ऐसे बोलते हो कि मेरे पास में एक सिंगल थ्रेडेड वर्म है तो एन तो हो गया 1। आप कहते हो मेरे पास डबल थ्रेडेड वर्म है तो एन हो गई 2। आप कहते हो मेरे पास ट्रिपल थ्रेडेड वर्म है तो एन हो गया 3। अब क्वेश्चन को पढ़ के आप बताओ एन की वैल्यू कितनी है। Sir, एक 1. यहाँ पे मिल रहा है आपको ये इंफॉर्मेशन ऑफ अ Sir, single सिंगल worm वर्म एंड and वर्म। तो कई बार ऐसे इंफॉर्मेशन कैजुअली भी मिल जाती है, इसमें सिंगल थ्रेडेड करके नहीं लिखा है, मगर सिंगल वर्ड से आपको अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि ये सिंगल थ्रेडेड वर्म व्हील है। तो आप एन की वैल्यू इस प्रॉब्लम में लेंगे इक्वल टू 1, ठीक है। सारे पैरामीटर मिल गए आपको।
आपका प्रॉब्लम के अंदर सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं. We will take n equal to 1. Now all that remains is to substitute all these values and get your answer. अब देखें अपन वेलोसिटी रेशियो जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मेरे को इस फिगर को देख के. कैन यू जस्ट सिंपली टेल मी द वैल्यू ऑफ वी आर और वेलोसिटी रेशियो. सर 120 टाइप आ रहा है सर 120 वी. 120 वेलोसिटी रेशियो इज 120. हाँ सर. सर ये अभी 9:35 10 मिनट और है. वेलोसिटी रेशियो इज 120. अब आप देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है. फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. लिफ्टिंग मशीन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर MA अपॉन VR. वेरी गुड. मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. अब वेलोसिटी रेशियो तो आपने निकाल ही लिए. वेलोसिटी रेशियो इज 120. ठीक है. मैकेनिकल एडवांटेज कितना है प्रॉब्लम में देख के बताओ. सर 600 न्यूटन्स. मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट ही नहीं होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन है कि अगर मैं एक लिफ्टिंग मशीन यूज करके कोई लोड उठा रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कम एफर्ट लगा करके ज्यादा लोड उठाने की कोशिश करूं. ठीक है. यस सर यस सर यस सर. तो मैकेनिकल एडवांटेज का इस कॉन्सेप्ट से सीधा सीधा डेफिनेशन आप अपने माइंड में ये रखो. कितना लोड उठा रहा हूं, कितना एफर्ट लगा करके, यानी कि अमाउंट ऑफ लोड पर यूनिट एफर्ट. यस सर. तो क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? मैकेनिकल सर W एडवांटेज अपॉन T. इट इज सिंपली गिवन एज W. अब क्वेश्चन में देख करके बताओ मैकेनिकल एडवांटेज का कितना वैल्यू सर है. 30 सर 30. यस. मैकेनिकल एडवांटेज इज सिंपली लोड लिफ्टेड कितना है 600 न्यूटन और एफर्ट अप्लाइड कितना है 20 न्यूटन. तो 600 डिवाइडेड बाय 20 दैट विल बी 30. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 30. नाउ टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी. सर 25%. 25%. ठीक है. आप जब एफिशिएंसी निकालोगे तो इट इज 30 डिवाइडेड बाय 120 और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100. ठीक है. परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR इंटू 100. सो योर आंसर इज 25%. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आपने देखा 8 नंबर का क्वेश्चन है. आप जितने भी क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आपके RTU में कभी भी इसमें से लिफ्टिंग मशीन्स में से कोई प्रॉब्लम आती है, 95% ऑफ टाइम्स इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. तो अभी एक चीज नोट करके रख लो, जो भी अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, लिफ्टिंग मशीन्स अच्छी तरह से पढ़ना है. अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब है रिमेंबर द डायग्राम्स, रिमेंबर द पैरामीटर्स. कौन कौन से पैरामीटर कहाँ पे ड्रॉ किए हैं, कैपिटल D क्या है, स्मॉल d1 d2 क्या है, और n क्या है, t क्या है. ये सारी चीजें फिगर के साथ वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले से याद रखें. इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं एंड यू शुड नॉट मिस आउट ऑन सच क्वेश्चंस. ये तो पक्का सॉल्व करना है. ठीक है. अब देखें आगे एक आध कोई और लिफ्टिंग मशीन. सिंगल परचेस विंच क्रैब आता है. इसमें देखो, ये देखो, इसमें एक लीवर लगा हुआ है. लीवर को आप पकड़ के घुमाते हैं तो ये गियर घूमता है, इस गियर से ये गियर घूमेगा, इसके घूमने से इसके साथ लगा हुआ लोड ड्रम घूमेगा और लोड ड्रम पे लपेटे हुए धागे से लोड लिफ्ट होगा. ठीक है. ये तो होता है आपका सिंगल परचेस विंच क्रैब. डबल परचेस विंच क्रैब में इन दोनों गियर्स के बीच में एक एडिशनल गियर और लगा.
ये देखो, एक स्टेम और आ गया, लीवर घुमाओगे, पहला गियर घूमेगा, उससे दूसरा घूमेगा, दूसरा और तीसरा रिजिडली कनेक्टेड है स्टेम के थ्रू, तो दूसरा जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से तीसरा घूमेगा, तीसरे के घूमने से चौथा घूमेगा, चौथे से लोड ड्रम, और लोड ड्रम से लोड लिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी गियर्स हैं उन सबके नंबर ऑफ टीथ T1 T2 T3 T4 ऊपर से आएंगे, जो कि एफर्ट हैंडल के साथ में जो लगा है वहां से T1 काउंट होगा, एंड डाउनवर्ड्स यू गो T1 T2 T3 T4, T4 जो है वो लोड ड्रम पर होगा। अब आपका फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का हो गया, नीचे से T1 स्टार्ट होगा, T1 ऊपर T2 फिर T3 फिर T4, ये अरेंजमेंट याद रखें। कैपिटल एल क्या है? कैपिटल एल है आपका बेसिकली लीवर आर्म की लेंथ, या रोट आपका लीवर आर्म जो रोटेट करेगा उस रोटेशन की इमेजिनरी सर्कुलर मोशन का रेडियस। सिंपल लीवर हैंडल की लेंथ से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा ट्रिक और है। कुछ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये लीवर यहां से हटा देंगे और उसकी जगह एक व्हील लगा देंगे और उस व्हील पे धागा बांध करके नीचे को एफर्ट लगा देंगे। क्या ऐसा कर सकता हूं क्या? आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके मेरे को बताओ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये लीवर हटा दूं यहाँ से, और इस लीवर की बजाय देखो भाई बाकी सब में क्या हो रहा है, इससे पहले वाली यहाँ पर भी तो लीवर लग सकता था ना। ये जरूरी थोड़ी है कि एक यहाँ पर एफर्ट व्हील ही दें, यहाँ पर एक लीवर लगा दो और मैं हाथ से पकड़ के उस लीवर को घुमाता हूँ तो भी लोड लिफ्ट हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसे धागे की तरह जैसे कुएं से पानी निकालते हैं सारी लिफ्टिंग मशीन वैसे ही, कोई जरूरी नहीं है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो लीवर ही मिलेगा आपको, एफर्ट व्हील नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीजें म्यूचुअली रिप्लेसेबल है। इंस्टेड ऑफ अ हैंडल I can easily replace this and give you the data for a effort wheel। तो आप ये सोच के घबरा मत जाना कि यार डबल परचेस और सिंगल परचेस में एफर्ट व्हील कहां से आ गया। एफर्ट व्हील आ सकता है, तो उसमें मेरे को ये बताओ एफर्ट व्हील का डायमीटर दे दूं तो इस फॉर्मूले में आप क्या यूज करें एल की जगह? व्हाट विल यू यूज in Radius. in place of L if I give you an effort wheel here and I give you the diameter of that wheel? सर डी आ जाएगा। D by 2 आ जाएगा, यस सर, डी बाई D टू, by यस 2 सर। सर रेडियस लेंगे। क्योंकि आपको जब आप लीवर की लेंथ ले रहे हो तो आप इमेजिनरी सर्कल का रेडियस ले रहे हो, तो अगर मैं एफर्ट व्हील दे दूं तो आपको उसका रेडियस लेना पड़ेगा। नीचे का जो कैपिटल डी है वो तो वही रहेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप मेरे द्वारा लगाए गए एफर्ट व्हील का डायमीटर लेना चाहते हैं तो एल की बजाय 2L को पूरा गायब कर दो और 2L की जगह उसका पूरा डायमीटर ले सकते। यस सर। ठीक है सर ये ना? तो फिर डी बाई डी वन ही हो जाएगा सर, ये वाली टर्म ही गायब हो जाएगी पूरी। अरे भाई कैसे होगा? कैपिटल डी तो ये है, लोड ड्रम है, और यस सर। स्मॉल डी मैं यहाँ लगा के ओके सर, दूंगा, स्मॉल डी। यस सर, स्मॉल डी, स्मॉल डी। है ना? तो वो तो ड्रम ही अलग है ना। यस सर। ओके, अब इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन एक बार लिफ्टिंग मशीन की जरूर करें। इस पूरे लिफ्टिंग मशीन के खेल में सिर्फ एक स्क्रू जैक है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और स्क्रू जैक की जो डेरिवेशन है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर पॉसिबल हो तो मैंने आपको पहले कहा था इस डेरिवेशन को तो रट लो। अपन ने पूरा इसका लॉजिक सॉल्यूशन सब किया है। इट्स अ लेंथी डेरिवेशन बट इट इज पॉसिबल दैट यू कैन टेक इट। ठीक है, तो मैं छोड़ने को तो कुछ भी नहीं कहूंगा लिफ्टिंग मशीन में, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू हैव, if you have to leave something then leave screw jack and differential screw jack। differential screw jack तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसमें भी अगर आप डायरेक्टली इसको रट लो तो कोई दिक्कत नहीं। बट बिफोर दीज टू, यानी ये 12वें और 13वें से पहले जितने भी लिफ्टिंग मशीन है ये बहुत ही सिंपल है समझने में, फॉर्मूले भी सिंपल है, तो फिगर के साथ में उनको याद कर लो। सो वी विल स्टॉप द लेक्चर टुडे। अच्छा, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, कल आपकी दिनेश सर की जो क्लास है वो मैं अरेंज करा रहा हूँ। सो यू
जस्ट लॉग इनटू माय क्लास टुमारो, ठीक है। मैं एक बार देख के बताता हूँ कि कितने बजे है आपका लेक्चर। दिनेश सर की जो क्लास है कल 1:40 पर है दोपहर में, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मेरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो मेरा एक्सेस है नहीं, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी सुन रहे हैं वो इस चीज को अपने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी के अभी प्लीज पोस्ट कर दें। तो मैं अभी किससे ये पूछ रहा हूं मैं, लेट मी आस्क। अभिषेक, यस सर। अभिषेक ये आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा। आज लेक्चर जो अपनी खत्म हो जाए तो आप इमिडिएटली सिर्फ एक इतना सा मैसेज ट्रांसमिट कर दो कि कल आपकी, लेट मी सी, 1:40 से 2:25 तक की जो दोपहर की ऑनलाइन लेक्चर है उसमें स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासरूम में आना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये चीज आप अभी पोस्ट कर देना। आई विल टेक योर लेक्चर, सॉरी लेक्चर नहीं, आई विल टेक योर अटेंडेंस, प्लीज स्टे विद मी।